Hello everyone, welcome to Supergrads, and today we will be discussing the note making strategy. Yes, notes play an important role, a crucial role when it comes to revision. Notes play an important role when it comes to understanding what I have understood, what I have actually gained from this session. So, for all those clear pictures, we will be understanding how to create killer notes for your IPMAT examination. I am Mayur and will help you understand what all things you need to take care of while making notes. So, let's begin with our first slide, that is why do they really matter? मतलब जरूरी है क्या नोट्स बनाना? ना बनाऊं तो बिना नोट्स के काम चल जाएगा। मैं रैंडमली एक रफ कॉपी ले ली, उसी में सॉल्व करता रहता हूँ, उसी में इंग्लिश सॉल्व कर ली, उसी में मैथ सॉल्व कर ली, तो मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई एंड इज इट नेसेसरी। सो द फर्स्ट थिंग कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो क्विक रिवीजन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो नोट्स आर द एफिशिएंट टूल्स फॉर क्विक रिवीजन। अगर आपको क्विकली रिवाइज करना, सब कुछ एक साथ देखना है, एग्जाम के 2 दिन पहले से सब कुछ कवर हो जाए, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए और नोट्स होने चाहिए। उसके लिए यू कैन नॉट scroll or down all the material that you have downloaded, or you cannot go through the videos, or you cannot just go through various books which you have solved. You need everything compiled at one place, so they are easier for quick revision. The second thing is it improves the understanding and retention. जब हम सुनते सुनते लिखते हैं या कोई चीज पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं, तो दे हेल्प्स अस इन रिटेनिंग आवर कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि एक तो सुन लिया तो दिमाग ने वैसे थोड़ा स्ट्रेस डाला कि हाँ सुन लिया, फिर हमने लिखा तो वो टैली हो जाता है, लिखते हैं टैली हो जाता है, तो उससे एक तो कि इंफॉर्मेशन हमने कहीं गलत तो नहीं सुन ली, वो अपना क्रॉस चेक रहता है। दूसरी चीज कि हमें लंबे समय तक चीजें याद रहे, हम रिटेन कर पाए, इसलिए भी नोट्स बनाने जरूरी है। एंड obviously why we are here, why we are watching this video, that is to crack the IPMAT examination. So this will be the key thing to crack your IPM examination. With this, let us proceed to our next thing कि what are the keys that are required to create killer notes? क्या जरूरी है, की स्किल्स कौन सी चाहिए? तो सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए। यू शुड मेंशन द टॉपिक्स, यू शुड मेंशन द areas, chapters and all other things which are to be there, that indicates ki what all things are mentioned below on that page, what all things are there in this note section. So obviously it should be organized. Next, it should be concise. It should not be like you are writing each and everything, whatever the teacher is stating, you keep on writing and then framing things and writing paragraphs for each single aspect or each single formula. No, it should be simple, quicker, and precise or concise. Next, take help of the visuals and the diagrams wherever possible. Just draw the diagram wherever possible. Just draw the tree कि इसके नीचे ये आता है, इसके नीचे ये आता है, क्लासिफिकेशन है किसी चीज का, किसी के 3 से ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो ट्राई टू यूज विजुअल्स, यूज दी बॉक्सेस टू हाईलाइट दी की एरियाज, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, है ना? ड्रॉ दी टेबल्स, ड्रॉ दी विजुअल्स इफ पॉसिबल, ड्रॉ दी पाई चार्ट फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। तो यूज, टेक हेल्प ऑफ द विजुअल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड नॉट बी लाइक कि 2 चैप्टर के नोट्स बनाए फिर नहीं बनाया, या फिर 2 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए उसके बाद मन नहीं लगा तो मैंने नोट्स नहीं बनाए। You have to consistently keep on mentioning and writing everything under your note section and in your notebooks wherever you are making the notes. Can be a online thing, can be a technical platform like iPads or something, or notes, or your tablets, or it can be a simple pen and copy thing that you can do. There is nothing harm in doing any of these things, but keep in mind it should be organized, it should be concise, it should be fully compiled with visuals, diagrams, and they should be consistently across all the areas, across all the domains, should be consistently spread, should cover everything consistently. Next, let us understand this section by that if it comes to QA, what all things I need to keep in mind. So
द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। क्यू है मतलब मैथ्स, मैथ्स मतलब फॉर्मूले का तो पहला रिश्ता है। दूसरी चीज, राइट डाउन ऑल द शॉर्टकट वट एवर यू आर लर्निंग ड्यूरिंग दी क्लासेस। कि सर ने ट्रिक बताई, इस समय पे एकदम मजा आ गया, जादू जैसा लगा, पर खुद भूल गए वो जादू करना। तो वो जादू टीचर इसलिए नहीं दिखाता कि यू आर रियली इम्प्रेस्ड कि यार जादूगर हैं सर, वो इसलिए दिखाता कि आप भी वो जादू पेपर में कर पाओ एंड यू सेव योर टाइम। सो write down your formulas, write down your shortcuts, and obviously solve problems. There will be problems of the same nature, but there will be a problem. एक कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताता है टीचर कभी कभी कि यार ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इससे ये फॉर्मूला डेराइव होता है। जैसे कि ए ने चलना किया शुरू किया, बी ने चलना शुरू किया, इधर से दोनों मिले और मिलने के बाद इसको 36 सेकंड्स लगे और इसको 81 सेकंड्स लगे, तो बताओ मिलने के पहले कितना टाइम लगा होगा। तो इसमें टीचर बताता है कि इसका आंसर हमेशा √T1 T2 होता है। तो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गिविंग मी द फील कि कहाँ पे ये अप्लाई करना है। तो फॉर एप्लीकेशन यू कैन राइट डाउन वेरियस प्रॉब्लम्स एज वेल, sticking to that particular formula, particular short trick, or particular anything. Next is your logical reasoning. So logical reasoning में take care of the visuals and puzzles for writing down the notes of the puzzles and your arrangements, whatever is mentioned. है ना, डीआई के लिए तो ऑब्वियसली बेसिक मैथ्स और शॉर्टकट्स ही लग जाएंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ द विजुअल्स कि भाई इस टाइप के पजल्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ द क्रिटिकल लैंग्वेज कि भाई इफ देन यूज किया है तो क्या मतलब है, वाई हुम विच यूज किया है तो क्या मतलब है, एंड बट और नॉर यूज किया है तो क्या मतलब है। तो ये छोटी छोटी चीजें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलती कि यहाँ पे ये सेम अप्लाई नहीं हो सकता जैसा पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। अच्छा तो ये चेंज क्यों हुआ, वो चेंज हमारे नोट सेक्शन में आएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू मेंशन इन योर लॉजिकल रीजनिंग नोटबुक। नेक्स्ट इज योर वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो यू कैन मेंशन, you can form the tree method for memorizing the roots and the words associated with the roots, and you can use the vocabulary tools like making the tree, making the branches, flow diagram, or making the root diagram उस तरीके से। And obviously you can form the visuals, you can form a table for the grammar rules. This is what you can do. And here also you can just note down the question or the RC and keep that handy कि question number 2 of this sheet I'm writing it down, question number 3 of this exercise of this book I'm writing it down because ये passage बहुत अच्छा था, there were 5 learnings which I mentioned in the RC, so I will keep that thing handy। और जब मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं उस बुक में जाके वो रिवाइज कर लूंगा, आई कैन नोट डाउन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आरसी लिखने का इतना बड़ा आरसी लिख के थोड़ी रखेंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन डू। For GK business awareness, obviously, post examination, you are required to face the interviews in few of the colleges. Few क्या, most of the colleges, handful of the colleges will not take the interviews. बाकी तो सारे colleges, top notch colleges will be conducting their interviews. So for that, you need to keep the bullet points date wise, है ना, ताकि आप हैंडी रहो और उस चीज को तुरंत रिवाइज कर लो। उससे रिलेटेड स्टोरी याद आ रही तो ठीक है, नहीं है तो वी विल गूगल। जस्ट मेक द बुलेट पॉइंट्स। ऐसे नहीं बहुत थ्योरी लिख रहे हो तो रिवाइज करते वक्त इतनी मोटी बुक भर गई तो मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि 2 दिन में इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ी जा सकती। बट हाँ, एक पतली सी कॉपी, पतली सी डायरी, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू read it or complete it in the desired time. Next, how we are going to organize our notes. So you need to keep separate folders or separate section for each subject. For each subject, you have to keep separate folder. ऐसे नहीं कि उसी में LR है, उसी में DI है, उसी में वर्बल है, उसी में क्वांस है, उसी में बीच बीच में जीके है। तो वही अगेन ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज डिफरेंट फोल्डर्स, डिफरेंट सेक्शंस। देन यू कैन ऑलवेज यूज कलर कोडिंग, लाइक फॉर्मूला के लिए कि फॉर्मूले को मैं ब्लू से कोड करता हूँ, डेफिनेशन को ग्रीन से कोड करता हूँ, है ना, शॉर्टकट को येलो से कोड करता हूँ। तो यूज दोज हाइलाइटर्स इफ यू आर यूजिंग फिजिकल नोट्स। और ऑनलाइन नोट्स हैं तो यू विल हैव इनफाइनाइट मेजर्स और मेथड्स टू आइडेंटिफाई दी हाइलाइट्स। ओके, नेक्स्ट, इंडेक्स। That is, you need to maintain the index from page this to this topic is mentioned, from page this to this LR की ये टॉपिक के नोट्स है, फ्रॉम पेज दिस टू दिस क्रिटिकल रीजनिंग के ये नोट्स हैं, फ्रॉम पेज दिस टू दिस ग्रामर के रूल्स हैं। सो इट इज फॉर इजी नेविगेशन कि यार ग्रामर तो होगी रिवाइज, अब मुझे एलआर का ये सेक्शन रिवाइज करना है तो आई विल जस्ट गो टू दैट कॉपी, ओपन दैट पेज नंबर एंड जस्ट गो थ्रू दिस।
जैसे मैंने बोला आरसी के लिए यू हैव टू मेंटेन इंडेक्स की पेज नंबर 3 to 7 आई मेंटेन द इंडेक्स फॉर द आरसीज, so you can just jump onto that. You can just go through the best of the RCs that you have gone through, best of the reading articles that you've gone through. Just quickly go to that book, revise them just before the examination. And last thing you have to keep is regularly updating the notes. It should not be like कि DILR की बेसिक क्लास हुई थी, सर ने कुछ थ्योरी बताई थी, वो लिखी हुई है नोट्स में, दैट दोज आर माय नोट्स, कुछ फॉर्मूले बताए थे लिखो नहीं. In every class you will learn at least one formula or at least one short trick or at least one critical angle to the problem. Just mention that under your note section, date this, and this is the thing that I have learned. सर ने बोला कि यहाँ पे डबल नेगेटिव्स हैं और उसके पीछे अगर नॉट आ रहा है तो ये अगेन नेगेटिव स्टैंड होता है, बट डबल नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव है. तो ये सिर्फ इतना सा सीखा. अब ये पढ़ते तो इंग्लिश में, पर अप्लाई मैंने आज लॉजिकल रीजनिंग में भी किया था, और इस टाइप के प्रॉब्लम में कैसे डील करना है. तो यू जस्ट mention each and everything, the style with which the teacher is reading the problem, the critical thing he's telling. कि यार पॉइंट नंबर 3 से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा. क्यों पॉइंट नंबर 3 से शुरू किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वर्ड हाईलाइटेड लगा, इस वर्ड की वजह से मैं लिख रहा हूँ. तो वहां पे जाके लिख लो ऐसा कुछ वर्ड मिलता है, तो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सो एंड सो टॉपिक. So this is how you need to keep updating your notes. It should not be like कि basics of geometry में कुछ पढ़ाया था, mention कर दिया. आगे जाते जाते once you complete the geometry, तो there will be various problems जहां पे अलग अलग problems discuss होती, but उनके shortcuts आते हैं, लास्ट में रिजल्ट्स आते हैं. तो identify them, keep them as the standard result, put it in the note section. Got it? Next, obviously, in this era where technology is available and is very handy, so what all technical things you can use? You can use apps like OneNote, Evernote for easy organization. OneNote pe you can keep different slides, different sections, different pages, everything you can keep on OneNote. Next, you can mind mapping tools like Xmind and Visual Summaries, है ना? Mind mapping tools available है, जैसे Xmind you will download, तो you can विजुअली समराइज की इंडेक्स मेंटेन करने के लिए भी एक अच्छा टूल हो सकता है. वो किसी चैप्टर की ट्री बनानी है, क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन के लिए भी अच्छा टूल हो सकता है. एंड अल्टीमेटली वॉइस रिकॉर्डर फॉर द लेक्चर्स और क्विक की पॉइंटर्स, की किसी लेक्चर के कुछ वॉइस पॉइंट्स हैं मैंने रिकॉर्ड कर करके रख लिए थे, और लास्ट डे आई विल लिसन टू देम वंस आई एम गोइंग फॉर द इंटरेक्शन. आई एम गुड एट लिसनिंग, तो मैंने ऑडियो बुक अपनी बना ली है, एंड वेन एवर आई ट्रैवल आई कीप ऑन रिवाइजिंग देम while listening to the audios that I have recorded. Clear? Uh, and the last thing that you have to keep in mind is the common mistakes while making or maintaining the notes. What is the common mistakes? Avoid writing too much and focus on the essentials. क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी definitions, बहुत बड़े बड़े clarifications, बड़े बड़े examples. So try to be precise as you can. मतलब काम की बात लिखो, और ज्यादा ही है तो make a index देयर इटसेल्फ, कि मुझे लग रहा है कि यार इसमें और भी मुझे डेफिनेशन ही पूरी रिवाइज करनी है, तो जस्ट मेक अ इंडेक्स कॉपी, ब्लू कलर की कॉपी में पेज नंबर 5 से 7 तक ये डेफिनेशंस मुझे रिवाइज करनी है. वो नोट्स नहीं हम खराब करेंगे, नोट्स में वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर है? क्योंकि हर एक चैप्टर की सारी डेफिनेशन करनी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि रिवाइज करने ही होते हैं, मुझे हर बार भूल जाता हूँ, तो उनका इंडेक्स अपन मेंटेन कर लेंगे वहां पे. नेक्स्ट, डोंट स्किप विजुअल एड्स लाइक चार्ट्स एंड डायग्राम्स. मतलब आप कॉपी खोलो तो आपको एक के बाद एक के बाद एक पॉइंटर्स पॉइंटर्स पॉइंटर्स, तो यू विल गेट बोर्ड आफ्टर रीडिंग 5 पेजेस. बीच बीच में ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव, मोर विजुअली अपीलिंग, कि अरे ट्री बनी हुई, अच्छा इसका मतलब ये है, तुरंत समझ गए. टेबल्स बनी हुई हैं, पाई चार्ट्स बने हुए हैं. एट टाइम्स यू कैन जस्ट फ्रेम दी लाइन ग्राफ्स, कहीं कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ज्योग्राफी के लिए, या कुछ फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए, या जीडीपी का चेंज समझने के लिए, है ना, फिजिकल डेफिसिट कैसे चेंज हुआ है, तो फॉर दैट यू कैन प्लॉट दी लाइन ग्राफ. तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए वट एवर इट फील्स लाइक एंड वट एवर अपील्स यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग. गॉट इट? And keep your notes updated. Again, people generally tend to make notes in the theory sessions, in the basic sessions, but when you are doing the problem solving, when you are in the practicing mode, you forget to update them, because each and every problem says something. हर एक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कहती है. गॉट इट और नॉट? जैसे साप्लस में हर एक रिश्ता कुछ कहता है टाइप, ऐसे ही एवरी प्रॉब्लम, एवरी आरसी, एवरी फॉर्मूला, एवरी पजल
सेज समथिंग और उसकी वो जो जिस्ट है, वो जो एक लाइन है, वो जो एक एंगल है, आपको नोट्स में जाके अपडेट कर देना है. सो इट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली. इट शुड नॉट बी लाइक चैप्टर खत्म, अपडेशन करो. जब भी प्रैक्टिस करो, जब भी रिवाइज करो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, अपडेट कर दियो. गॉट इट? एंड विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव from today's session. And you can obviously connect with us on these platforms like Telegram, which is Supergrades IPM BBA Entrances by Top Ranker. Then you can connect with us on Instagram. Obviously, you prefer, and most of you scroll Instagram uh, in your free time. So you can connect with us on Instagram, that is super.grades. And then you're watching us on YouTube. So quickly go to the bell icon and just subscribe our channel, Supergrads IPMET Coaching by Top Rankers. And we have a management community also, which is IPM Learn Together. So you can connect with us in any ways you wish to. And rest, you can go to our website www.toprankers.com. You can always mail us at support@toprankers.com, and such a convenient form, call us on this number 6363286363. Very easy. Got it? So with this, I would like to take your leave. All the very best. Have a nice day. Keep learning with Super Guides.